ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। राइट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू, जहां से हमारा बाकी था बेटा, कंटिन्यू करेंगे। अभी तक राइट, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पहले वो वॉच करना, उसके बाद ही कंटिन्यू करना, जिससे आपको इश्यू ना रहे, तो ही समझ में आएगा। अनदर वन थिंग्स, right, before you start the solution of each and every question, right, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अपने अटेंडेंस के रूप में राइट, आप चाहो बेटा तो प्लीज राइट कमेंट बॉक्स में, राइट, अभी तक हमने जितने भी 3 फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, एपी थे, एएन एसएन थे 2 फॉर्मूले, वो सारे नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे आपका वो रिवाइज हो और उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और सब लोग अगर वो डालेंगे बेटा तो कितने सारे फॉर्मूले दिखेंगे और सबका मतलब दिमाग में वो फॉर्मूले बैठ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो लाइक करना मत भूलना। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है बेटा। The sum of first 7 term of an AP is 49 and the sum of first 17 term of that AP is 289. You have to find out Sn, मतलब sum of all the n term, and for that you need right your the first term common difference, right। तो शुरू करते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन। हाँ, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए वीडियो तो पॉज करो, राइट, अपने आप ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो बेटा, अगर आपसे हो सकता है तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। जिससे नहीं हो पा रहा है, राइट, प्लीज वॉच द सॉल्यूशन हियर। और जिनका सॉल्यूशन हो भी जाए, आंसर आ भी जाए बेटा, तो भी राइट सॉल्यूशन चेक करना मत भूलना, बिकॉज आपको पता है हर एक सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मेरे तरफ से कोई ना कोई ट्रिक होती है, राइट, तो इजी कैसे हो सकता है, तो सॉल्यूशन देखना मत भूलना। राइट, सो स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट बेटा। S7 is 49 मतलब sum of all the 7 term, first 7 term is equal to 49। we know the formula of Sn बेटा, क्या होता है, राइट, Sn is equal to n। अब ये काम करता हूं, साइड में लिख लेता हूं जिससे आपको वो याद रहे बेटा। An equal to a plus n minus 1 into d, राइट। Sn के 2 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे बेटा, राइट, n by 2 in bracket फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला है बेटा, and another one that is n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। ठीक है बेटा, तो Sn इक्वल टू बेटा n by 2 इन ब्रैकेट हम यूज करने वाले a and d वाला बेटा, बिकॉज हमें Sn चाहिए इसलिए। Sn फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द 7 टर्म बेटा, so it's a 7 by 2 2a plus 7 minus 1, it's a 6d। you can take out 2 common from it, you get a plus 3d, it's so easy, right? So that is your first equation, you got it। what about the S7 beta, that is 49, right? can I write down like this? So 7 that side, so a plus 3d equal to 49 by 7, 7 7 ja, so here it is your first equation, that a plus 3d equal to 7। any doubt? Move to the next one, S17 is equal to 289, same process, so S17 is equal to 17 by 2, right, using this formula, in bracket 2a plus 17 minus 1, it's a 16d, right, so easy, you can take out 2 common beta, so you get a plus 8d, 2 to 30 out, here it is equal to 289, right, so a plus 8d is equal to 289 by 17। if you know it better, it's a 17 square 289, right, so 17 ja, so you get another equation, second equation, a plus 8d is equal to 17, that is your equation number 2, right। we need to find the solution of the value of a and d, so what I have to do, the red substitution or elimination method, out of 2 you can use any one method, whatever it's your choice। if I will use elimination method, then it's a plus 8d is equal to 17 and a plus 3d is equal to 7, separate it, cut it, 8d minus 3d, that is 5d, here it is 10, so the value of d is equal to 2,
right? It's so easy. Now the value, put the value of d in any one equation, right? Whatever you like. If I will put in the first equation, then it's a plus 3 2s are 6 equal to 7. The value of a is equal to 1. Correct? Now what we have to find? The value of Sn. We know the formula of Sn. Right? Here it is Sn. So n as it is n by 2 in bracket 2, the value of a, it is 1. I am using this one formula, plus n minus 1 as it is, because we need the answer of Sn, means in term of n. So we only put the value of a and d. No need for n. The value of d is equal to 2. So easy n by 2 in bracket 2 plus 2n minus 2. 2 minus 2, 30 out. So n by 2 into 2n. 2 to 30 out. That's why it's n square. The value of Sn equal to n square. Any doubt? Anyone? Right? It's so easy. Right? अगर आपका आंसर सही हुआ है, if your answer is correct, please write down in the comment box. Right? जिसका गलत हुआ है, please write down entire question. Yes, another one things, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया हुआ है. राइट? ये अप्रोक्सली अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन. Continue with the next question, that is question number 10. In this beta series is given, means an equal to term given है बेटा 3 plus 4 and ऐसा ही दूसरा वाला है. सबसे पहले तो हमें इसको प्रूव करना है, सॉल्व करना है. It is AP and we know that, right, for the AP first of all we need a few term, right? Then we will check it out their difference. If the difference is same, it means it is already in AP. And once we prove it, then we need to find out the sum of first 15 term of that AP. Got the question, beta? Any doubt? Okay. So we'll start. Yes, अगर किसी को आता है तो आप अपना ट्राई कर सकते हो. It's right. वीडियो को पॉज करो. Try the question and write down the answer in the comment box. Correct, beta? Okay. So I will start the solution of this question. An equal to 3 plus 4n. So first of all I need to find a few terms for it, right? So it's a first term, that is 3 plus 4 means it is a 7. For the second term a2, right? In place of beta n I need to put 2. So 4 2s are 8. 8 plus 3 it's 11. For the third term 3 plus 4 into 3, 4 3s are 12 plus 3 15. Got it? You can check it out for another one term, beta. 3 plus 4 4 4 4 is 16 plus 3 it's 19. So it is your first term, second term, third term, fourth term. Please check it out difference, beta. A2 minus A1 is 11 minus 7, that is also 4. A3 minus A2, that is also 15 minus 11 4. A4 minus A3, that is also 19 minus 15 equal to 4. Right? Means difference is same, means yes, it is an AP. Got it? Now what we have to find? The sum of first 15 term. Right? So AP is beta 17, 7, 11, 15, 19 dot dot. It means first term for this AP is 7 and the common difference 11 minus 7 means 4. We already done it. Correct? We need to find sum of first 15 term S15, that is 15 by 2 in bracket 2a plus n means 15 minus 1 into d. The d is 4 beta. I used this one formula, that Sn wala. ठीक है? So 15 by 2 in bracket 7 plus 7 2 is 14 plus 14 4 is beta. It's a 56. 56 plus 14, that is 70. 15 by 2 into 7 0 70. Now see my trick, beta. Most of the students are doing like that. They are cutting, beta. 2 35s are right, and then they are multiplying 15 and 35. Right? Why you need it, beta? Right? It's a
कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज चलो आपने थर्ड किया दैट इज इजी, बट मल्टीप्लाई में थोड़ा और टाइम लगेगा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, सो आपका थोड़ा सा टाइम बच सके, स्पेशली जो स्कॉलर बच्चे हैं, राइट। इफ यू वांट 90 प्लस 95 प्लस 100 और 100, फॉर दैट यू नीड टू ऑब्जर्व सॉरी स्मॉल थिंग्स फॉर यू। रेडी? सो मैं क्या करूंगा इस इन प्लेस ऑफ कटिंग बेटा, मुझे ये पता है कि 15 7 जा कितना होता है और पीछे 0 है, तो वो मेरे लिए इजी रहता है मल्टीप्लिकेशन बेटा। 15 7 जा कितना होता है? करेक्ट 105 बेटा, पीछे 0 एज इट इज, और इसका आप देखो डिवाइड बाय 2 करना भी दिमाग में हो जाता है, इट्स 525 बेटा। तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत हुई नहीं। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप सॉल्व करो, आपका आंसर अगर आ भी जाता है देन एंड ओनली देन, तो भी बेटा आपको इसका सॉल्यूशन देखना जरूरी है। गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप सो ये भी आपने कर लिया होगा, राइट। जिन्होंने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स, देन स्टार्ट द सॉल्व। व्हाट्स द एंटायर सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देखना जरूरी है बेटा। Same process. First of all, we need to find out the few terms for it. That is 9 minus 5, that is 4. 8 2, that is 9 minus 5 in bracket 2. So 5 2s are 10. 9 minus 10, that is minus 1. Right? 8 3, that is 9 minus 5 into 3. 5 3s are 15 beta. So it's a minus 6. Another one term a4, that is 9 minus 5 4. 5 4s are 20, means it's minus 11. Right? So for check it out, it is an AP or not, we need to check that difference. 8 2 minus 7, that is minus 1 minus 4, that is minus 5. 8 3 minus 8 2, minus 6 minus minus 1, minus minus plus 1, so it is again minus 5. And the last one f4 minus a3, that is minus 11 minus minus 6, minus minus plus 6, minus 11 plus 6, it's so easy, minus 5, means difference are same, means yes, it is in AP. And the AP are beta 4 comma minus 1 comma minus 6 comma minus 11 dot 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 dot. Right? Any doubt, anyone? So first term we have, that is 4, and common difference equal to minus 5. Again same process, I need to find out the sum of first 15 terms. S15. Right, that is 15 by 2 in bracket 2a. A means 4, right? Plus n means 15 minus 1 into d. Any doubt, anyone? Right? So it is a 15 by 2. Here it is a 8 plus 15 minus 1 14. 14 5s are 70, but negative sign. So here it is a minus 70. So your answer is 15 by 2 into minus 62. अब 15 into 62 करना मुश्किल है, तो हमें थर्ड कर लेना चाहिए 2 से। 2 into 31. अब देखो 31 आ गया। अगर मेरी वाली मेथड बेटा 31 मतलब 30 plus 1 दिमाग में चल रहा है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, अब दिमाग में नहीं कर पाओगे बेटा। 30 plus 1 30। अब 15 3 जा में पता है कितना होता है 450 बेटा, राइट। एंड 15 1 जा 15 प्लस कर दिया कितना है 465, तो नेगेटिव साइन रखनी जरूरी है। सो योर आंसर इज माइनस 465। इट्स सो इजी, राइट। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करो, इफ इट पॉसिबल ऐसा आता है 31 29 41 39 40 प्लस 1 40 माइनस 1 नियर अबाउट इट, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना, इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा दिमाग में ही। ठीक है? एनी डाउट? प्लीज राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। और ये आया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, that Sn is given 4n minus n square, right? First of all you need to find out the first term, second term, sum of two term, right? Then third term, 10th term, nth term। ये है आपका क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में बेटा ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है,
राइट। और एक चीज, राइट, इसमें बच्चे ये वाले क्वेश्चन और जो प्रीवियस वन हमने किया क्वेश्चन नंबर 10, राइट, अगर उनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाए तो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। तो वो चीज ना हो इसलिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह एंड प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज रिवाइंड करते इसको देखना जरूरी है, रिवाइंड करते, राइट। अक्षय कुमार दीपर सो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, राइट। फर्स्ट स्टेप इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, right? Sn given, so we need to put the value of n. First of all I will put 1, then 2, then 3, likewise, right? If I will put 1, then we get S1, that is 4 minus 1 means 3. If I will put 2, then I will get 4 2s, और if आप नहीं देखो डायरेक्टली हम धीरे धीरे करते हैं कोई बात नहीं बेटा, 4 2s 8 minus 4, that is 4, correct? S3, right, 4 into 3 minus 3 square, so 4 3s are 12 minus 9, that is 3. If you observe it, right, previous one में क्या था, increase in आ रहा था, right, यहाँ पर decrease in हो रहा है, मतलब वो AP में था। आप easily देखोगे 3 4 3 3 फिर 4 अगेन 3, मतलब AP में नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म नहीं है, ये क्या है तो फिर, राइट। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, तो वो तो 1 ही होता है। अब पहला टर्म का सम क्या होता है, पहला ही टर्म होता है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो A1 बेटा, राइट। बट S2 मींस सम ऑफ टू टर्म बेटा, मतलब दो टर्म का एडिशन कितना है 4। इस मींस अगर आपको इसको लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, दैट इज A1 प्लस A2, मतलब जो दो टर्म है उनका एडिशन 4 है। समझ में आया बेटा? S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म, सिमिलरली S3 मतलब सम ऑफ थ्री टर्म, इट मींस हियर इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। समझ में आया? इट मींस ये जो 3 4 3 था वो हमारे टर्म नहीं थे, इट्स अ सम ऑफ वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस वन? राइट, बिकॉज क्वेश्चन में Sn गिवन था बेटा, so if you put the value of n 1 2 3 you will get S1 S2 and S3, that is sum of the terms. From this equation we need to find the term, means individual term, that is first term, second term, third term, likewise. Once we get it, then we will easily find out AP, and then right जो भी हमें क्वेश्चन में और चीजें पूछी। Got it? Okay, so first term कितना हुआ बेटा? A1, that is 3, right? A1 plus A2, that is 4, and we have a first term बेटा 3, so हमें A2 भी मिल जाएगा, that is 4 minus 3 मतलब 1. Any doubt anyone? Okay, move to the next one beta. Right, A1 plus A2 plus A3, that is equal to 3. Right, what about the addition of A1 plus A2, that is 4 बेटा, तो इनकी जगह पे मैं 4 लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 1, 3 plus 1 4, so you get A3 equal to 3 minus 4 means minus 1. Got it? So that is your AP. First term is 3, second term is 1, third term is minus 1. So your AP is 3, 1, minus 1, dot 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 dot. Got it? Any doubt anyone? Okay. So according to the AP beta, the first term is 3 and common difference is 1 minus 3, that is equal to minus 2. Right? We got first term and common difference. Now what we want beta? Right, third term तो we already got it. We need a 10th term, A10. We know it, A10 means A plus 90. Right, A, the first term is 3 plus 9 into D, the D equal to minus 2 beta. So 3 minus 18, the correct answer is minus 15. Got it? Any doubt? Another one thing is I need to find out nth term also. Means to put the value of A and D,
right? N as it is. We know the formula beta, A plus N minus 1 into D. A 3 plus, right? N as it is, N minus 1 into D. That is minus 2. So here it is 3 minus 2N minus minus plus 2. So that is your 5 minus 2N. That is your nth term of this AP. ये जो हमें AP मिली उसका nth term क्या होगा? 5 minus 2N. Anyone have any doubt बेटा? It's so easy question और important question भी है. अगर समझ में ना आया तो रिवाइंड करते वापस देख लेना, राइट? बट ये क्वेश्चन सबको आना जरूरी है. यहाँ पे Sn गिवन है, नॉट nth टर्म. nth टर्म तो हमने फाइंड आउट किया. प्रीवियस वन क्वेश्चन में nth टर्म गिवन था, राइट? उसका यूज करके हमने 80 इमीडिएटली हमें मिल रही थी. बट व्हाट अबाउट हियर बेटा, राइट? Sn गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट S1 S2 S3, दैट इज सम ऑफ one term, two term, three term. From that we get the equation, solve the equation with that AP, and after with that AP we find the nth term. Got it? Any doubt? Also you can check it out beta. If I put the value of n1 beta, 5 minus 2 3, that is your first term. Got it beta? Right? If I will put 2 beta, so 5 minus 4, that is 1. Got it, the second term? If I will put 3 beta, A3, that is 5 minus 6, that is minus 1, that is your third term. It means our nth term is correct. Any doubt? Please write down entire solution of this question. Okay, continue with the next question beta. Question number 12. Find the sum of first 40 positive integer which are divisible by 6. डिवाइड वाला क्वेश्चन याद आया बेटा? याद है वो क्वेश्चन डिविजिबल बाय 7 था, 3 डिजिट वाला. उससे बाद डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल ऑफ 4 वाला 10 to 250 के बीच में. एक्सरसाइज 5.2 में हमने दिया था. याद है? जरा रिमाइंड करो अपने आप, तो है ना? तो उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी होगी बेटा, डिविजिबल बाय 6. मतलब शुरू कहां से होता है? 6 का टेबल 6 से डेफिनेटली, राइट? सो एपी जो हमारे पास होगी, हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर सकते हो. व्हाई नॉट? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर इट? राइट? वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में. हाँ, जिन तो नहीं आता वो देख सकते हैं, बट हाँ, जो अपने आप ट्राई कर रहे हैं आंसर आ भी जाता है तो भी पता है ना, सॉल्यूशन देखना जरूरी है. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, find the sum of first 40 positive integer, means n is given, that is 40 which are divisible by 6. So we know that 6, 12, 18, 24 dot 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 dot. So here it is our AP, right? तो उसका first term क्या होगा बेटा? 6, right? Common difference भी कितना है? 6, because 12 minus 6, और आप बता सकते हो 6 6 6 6, right? और एनपीए में दिया हुआ है 40. सो इजी, वी नीड टू फाइंड ओनली S40 बेटा. कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? राइट? तो S40 का हम फॉर्मूला यूज करते डायरेक्टली. सो सॉल्व करते हैं. दैट इज 40 by 2 इन ब्रैकेट 2a. फॉर्मूले के हिसाब से बेटा, तो 2a, तो a की वैल्यू 6 प्लस n minus 1 into d. The d equal to 6 again बेटा. Any doubt anyone? It's so easy. So here it is the 20s, right? 2 6 12 plus, right? 40 minus 1 कितना होगा? 39. वाह रे वाह, फिर 39 आप 6 करने जाओगे, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट? क्या करना चाहिए बेटा? इजी वे से यार लो ना. 6 4 जा तो 240 माइनस 6 1 जा 6, हो गया इजी. 39 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा नहीं. और हमें ये भी पता बेटा 12 minus 6 कितना होता है? 6. और 240 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 246. समझ में आया? इजी वन बेटा, राइट? या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से 6 कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकालो तो अंदर बचेगा 2 plus 40 minus 1, तो भी 41 आ जाएगा. तो भी ऐसे इजी वे से कर सकते हो, बट ये भी इजी ही है कंपेयर टू दैट, राइट? और अभी तो यस, इट्स सो इजी. तो 0 तो ऐसे ही रहता है. 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 246 के साथ तो कितना आएगा? दिमाग में बोलो बेटा. क्या बात है, आई होप सो सबका सही होगा, राइट? दैट इज 492 और 0 as it is. Anyone have any doubt? Good.
सो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी बेटा, प्लीज राइट डाउन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 लाइक अ प्रीवियस वन बेटा, राइट। डेफिनेटली सब लोग ट्राई करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन, तो इट्स सो इजी, राइट। जो लास्ट क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है, राइट। सो ट्राई इट, pause the video and write down the answer in the comment box. So I hope so सबने आंसर डाल दिया होगा। So I am starting the solution of this question. Find the sum of first 15 means n is equal to 315, the multiple of 8. It means 8, 16, 24, dot, 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 dot. It means first term is 8, common difference is also 8. We need to find as 15. It's so easy, right? So it's a 15 by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. D is also 8, right? Anyone have any doubt? Good. So 15 by 2 as it is, right? 8 2s are 16, 15 8s are it's 120 minus 8, so उसमें 8 plus और 16 minus 8 8, तो ये आ जाएगा 128। अब आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा हो जा, नहीं, पहले 2 से कट हो रहा है, कर लो 64 जा। अब आप बोलोगे सर अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 960। सो इजी, कैसे दिया? बहुत इजी है बेटा, मैंने कैसा बोला था आपको 6, तो 15 6 जा 90, 0 आएगा बिकॉज़ 60 है, और 15 4 जा 60, तो आ गए 960। दिमाग में हो सकता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ऐसा तो नहीं दी तो इजीली आपका मल्टीप्लिकेशन स्पीडली हो जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट? इट्स सो इजी क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। Okay, continue with the next question beta, question number 14. Again find the sum of but odd number between 0 and 50. 0 and 50 के बीच में जितने भी odd number आते हैं उनका एडिशन चाहिए। कर सकते हो? Yeah, wow, very nice. Try it. Pause the video and start the solution. Okay, I hope so सब कहाँ गया होगा और आपने आंसर डाल दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो I am going to start the solution of this question. Odd number between 0 and 50. So obviously it's a 1, 3, 5, 7, dot, 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 49. Right? It means first term we have that is 1. Common difference 3 minus 1 means 2. And the last term is 49. But how many terms are there? That we don't know. And without it we cannot find out the sum. Because for Sn first of all we need n beta, right? तो n कैसे find out करेंगे? Obviously nth term से बेटा, that is an equal to a plus n minus 1d फॉर्मूले से, right? nth term हमें दिया हुआ है 49, first term 1, n minus 1, d की वैल्यू 2, so easy। 1 इस तरफ आएगा तो 48 इक्वल टू n minus 1 into 2, 2 डिवाइड में तो 24 इक्वल टू n minus 1, तो ये 25 हो गया। So easy, it means we need to find out the sum of first 25 term. It's so easy question beta। S25 means it's a 25 by 2 in bracket। What we'll do, right? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। Why? Because last term हमारे पास अवेलेबल है, तो दगा मजूरी क्यों करनी थी? Definitely not। First term plus last term, that is 25 by 2 into 50, right? अब चाहो तो 25 पहले थर्ड कर लो, 25 का स्क्वायर that is 625, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर राइट 25 5 125 0 by 2, तो भी आंसर 625, ऐसे करो, इसमें तो दोनों सही है और इजी भी है। So easy question बेटा, प्लीज राइट डाउन। Okay, continue with the next question बेटा। Question number 15, right? कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना वर्क कर रहा है बेटा, अगर उसको लग बाय चांस डिले हो रहा है 1 डे, जितना उसको टाइम इंटरवल गिवन है, अगर 1 डे उसका वर्क डिले होता है तो he has to pay 200 रुपीज एज अ पेनाल्टी। अगर 1 दिन लेट होता है तो
अगर 2 दिन लेट होता है, राइट, तो उसको 200 पहले दिन दे दिया उसको, दूसरे दिन उसको कितने देने पड़ेंगे बेटा 250, मतलब 50 मोर देन द प्रीवियस डे। मतलब से एग्जांपल उसका वर्क 2 days लेट हुआ, मतलब 2 दिन लेट हुआ, तो उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा बेटा 200 प्लस 250 मतलब 450 रुपीज। सिमिलरली थर्ड डे अगर 3 दिन लेट हुआ तो उसको 300 प्लस देने, मतलब और 300, मतलब इन तीनों का ऐड कर लो, कितना होगा 750। गॉट इट। सिमिलरली राइट, अगर उसका वर्क 30 डेज अगर लेट हो रहा है, कितना डेज बेटा 30 डेज, राइट, so how much amount he has to pay as a penalty? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ट्राई कर सकते हो। वाह, वेरी नाइस। राइट, वीडियो तो स्टॉप करो एंड प्लीज राइट ट्राई करो, आंसर लेते आओ और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। Okay, we will start the solution of this question beta. Right, first day he has to pay 200 rupees, second day he has to pay 250 plus then 300, likewise dot 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 for 30 days. Means if I will say first term is 200, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 50, बिकॉज ऑलरेडी 80 में है, और नंबर ऑफ डेज कितना उसको उसका वर्क डिले हो रहा है बेटा बाय 30 डेज। और एक चीज आपने ऑब्जर्व की बेटा, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट, मतलब जो 30 डे पे उसने अमाउंट पे किया वो फाइंड आउट करना है एंटायर 30 डेज। तो इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बेटा, उन्होंने बोला है कि हाउ मच टोटल अमाउंट ही हैज टू पे इफ राइट ही इज वर्क लेट बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन अगर उसका वर्क लेट हो रहा है तो उसको टोटल कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो टोटल मतलब क्या आएगा SN बेटा, SN मतलब यहां पे आएगा S30, ठीक है बेटा। सो यूज द फॉर्मूला, इट्स सो इजी बेटा, 30/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 into D, D means 50 बेटा। एनी डाउट? इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा, सिर्फ जो स्टार्टिंग था वही इंपॉर्टेंट था, बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा। राइट, सो इट्स 15 जा इन ब्रैकेट 400 प्लस राइट 30 माइनस 1 करेंगे नहीं, करेक्ट 30 3 5 जा 15 माइनस 50, राइट, सो योर आंसर इज 15 into राइट 1900 बेटा माइनस 15 मतलब 1850, राइट। अब इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं 10 ले लू सिर्फ बेटा, राइट, तो आ जाएगा 18500 और 5 मतलब उसका आधा, तो 185 का आधा कितना होता है 1850 था बेटा, यस करेक्ट 9250, तो ऐड कर लो बेटा, राइट, तो दैट इज योर आंसर 27750। मतलब उसको आफ्टर 30 डेज अगर उसका वर्क डिले हो रहा है 30 डेज, तो आफ्टर 30 डेज ही हैज टू पे 27,750। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? प्लीज राइट डाउन। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। राइट, क्वेश्चन नंबर 16। इफ यू रीड द क्वेश्चन बेटा, राइट, टोटल 700 रुपीज फेस प्राइस है जो 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमॉन्ग द 7 स्टूडेंट्स। कितना टोटल अमाउंट अवेलेबल है बेटा एज अ फेस प्राइस 700 रुपीज, और उसको 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। बट जिसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, राइट, उसको राइट फिर उसके बाद सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज है उसके बीच में 20 रुपीज का गैप है, मतलब 20 रुपीज लेस मिल रहा है सेकंड प्राइज वाले को कंपेयर टू फर्स्ट प्राइज। इट मींस टेक एग्जांपल बेटा, तो जो फर्स्ट प्राइज अगर मैं उसको 100 रुपीज दे रहा हूं, तो जो सेकंड प्राइज है उसको कितना अमाउंट मिलेगा 80, देन द थर्ड प्राइज तो 60, लाइकवाइज। गॉट इट और नॉट? मतलब जो फर्स्ट है उसे कंपेयर टू सेकंड को 20 रुपीज लेस मिलेंगे,
राइट। तो 100, 80, 60 एज ए एग्जांपल दिमाग में हम ले सकते। इट मींस राइट 2020 का वेब हुआ, इट मींस वो एपी में है, डन, नो इश्यू अबाउट इट, राइट। अनदर वन थिंग्स, राइट, जो डी है वो जो 2020 लेस है, इसका मतलब क्या हुआ, डी कितना होगा, -20 बेटा। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट एनीवन? ओके। तो टोटल 7 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल जो अमाउंट है एस है बेटा वो हमारे पास है 700 रुपीज, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, देयर आर 7 स्टूडेंट्स, राइट। डी की वैल्यू हमारे पास है -20। फर्स्ट स्टूडेंट्स को कितना प्राइस मिलेगा अगर वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ए हमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, एसएन वाला, राइट। मतलब यहाँ पे एन कितना है, 7 बेटा। तो एसएन का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d, राइट। तो S7 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बेटा, तो 7/2 n ब्रैकेट 2a, a हमें फाइंड आउट करना है, n मींस 7 - 1 इनटू d कितना है बेटा, 20 माइनस में, ठीक है। तो S7 = 7/2 इन ब्रैकेट बेटा 2a प्लस 6 - 120 कितना होगा बेटा, 6 - 20 मतलब -120। एनी डाउट? 2 कॉमन निकाल रहे, निकाल सकते हो। और सामने है बेटा S7, टोटल प्राइस कितना है, 700 है बेटा, राइट। एनी डाउट? तो 2 कॉमन निकालोगे तो 7/2 इनटू 2 a - 6t = 700 बेटा। 2 2 कट, 7 उस तरफ जाएगा वो भी कट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। इट्स सो इजी। सो a - 6t = 100, तो a = 160। मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने रुपीस की होगी बेटा, 160, राइट। सिमिलरली 20 रुपीस लेस, तो जो सेकंड प्राइस है उसको कितना मिलेगा बेटा, 140। देन थर्ड प्राइस वाले तो 120, फोर्थ प्राइस वाले तो 100। लाइकवाइज आप लिख सकते हो। इट्स सो इजी बेटा, राइट। प्लीज राइट डाउन द आंसर। Okay, continue with the next question beta, question number 17, right. If you read the question beta carefully, right, because of air pollution, तो वैसे तो पहले तो बहुत एयर पोल्यूशन था, but currently because of corona, right, एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया, right. तो एयर पोल्यूशन की वजह से स्कूल ने डिसाइड किया, राइट, एडुप्लिस ने डिसाइड किया कि प्लांटेशन करना है। अब प्लांटेशन कैसे करना है बेटा, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है उसको 1 ट्री प्लांट करना है, सेकंड स्टैंडर्ड तो 2 ट्रीज प्लांट करना है, थर्ड स्टैंडर्ड तो 3, फोर्थ स्टैंडर्ड तो 4। लाइकवाइज 12th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, राइट, जो 12th स्टैंडर्ड का बच्चे हैं टोटल, उनको 12 ट्रीज स्टैंडर्ड वाइज, इट मींस स्टैंडर्ड वाइज उनको ट्रीज ग्रो करने होंगे, राइट, प्लांट करने होंगे। अब ये प्लांटेशन में और एक चीज भी है बेटा कि हर एक क्लास से 3-3 सेक्शन, मतलब देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। मतलब वैसे देखा जाए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में टोटल कितने ट्रीज ग्रो होंगे बेटा, 3। टोटल कितने ट्रीज प्लांटेशन होंगे बेटा, 3। सिमिलरली सेकंड स्टैंडर्ड में बेटा 3 2 जा 6। वैसे मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, या फिर राइट पहले आप जो 1 to 12 स्टैंडर्ड पहले मानते चलते एक ही सेक्शन है, तो उससे टोटल कितने ट्रीज का प्लांटेशन हो पाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले तो थोड़ा इजी रहेगा बेटा। गॉट इट और नॉट, राइट। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले 1, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 डॉट 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 12, राइट। सो इजी। मतलब टोटल कितने ट्रीज प्लांटेशन ट्रीज के होंगे बेटा, अगर वो मुझे जानना है तो कितना होगा, S12, बिकॉज टोटल 12 स्टैंडर्ड्स आर देयर, राइट। 12/2 n/2 होगा बेटा, और ब्रैकेट में आएगा, राइट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डायरेक्ट कर सकता हूं बेटा मैं, सो इजी। 2 6 राइट, तो 6 into 13 टेबल तो आता ही होगा बेटा, राइट। 78 प्लांटेशन ट्रीज के होंगे अगर पर क्लास, राइट, ओनली 1 सेक्शन होता तो। बट टोटल कितने सेक्शन है बेटा, 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने ट्रीज, राइट, प्लांटेशन होंगे, टोटल कितने ट्रीज के प्लांटेशन होंगे बेटा, राइट, दैट आर 78 into
3 बिकॉज 8th क्लास में 3 सेक्शन है, राइट, पर क्लास 3 मतलब फर्स्ट ए बी सी लाइकवाइज, 12th ए बी सी लाइकवाइज। गॉट इट और नॉट बेटा? राइट, समझ में आया? किसी को डाउट? गुड। तो कितना आंसर आया बेटा? 234, राइट। इतने ट्रीज टोटल प्लांटेशन होंगे। अगर आपने वैसे किया होगा बेटा, राइट, 3 वाले के हिसाब से, तो पहले आपको 3 लेना पड़ता, फिर 6, फिर 9 डॉट 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 लाइकवाइज, राइट। लास्ट जो क्लास होता 12, तो 12 3 जा 36, तो इसका आपको आंसर लाना होता, राइट। सेम प्रोसेस ही होती और सेम आंसर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाउट बेटा? सो इजी, प्लीज राइट डाउन। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, लास्ट से 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बचे और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एंड टोटल एप्लीकेशन बेस्ड। बहुत ही ध्यान से समझते आप तो ये तीनों क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट, स्पाइरल बन रहा है विच इज मेड अप ऑफ अ सेमी सर्कल, कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल कंटीन्यूअसली बन रहा है, डायग्राम में देख सकते हो बेटा, राइट। अल्टरनेटली सेंटर है ए एंड बी, राइट, और जो रेडी है वो फर्स्ट जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका 0.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, लाइकवाइज टोटल कितनी लेंथ हो गई स्पाइरल की, राइट। इफ देयर आर टोटल 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल से ये अगर स्पाइरल बना है तो कितने हैं टोटल बेटा सेमी सर्कल? 13। समझ में? हमें क्या फाइंड आउट करनी है? टोटल लेंथ। अब चाहो तो क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो, राइट, बट वीडियो तो पोस्ट करना मत भूलना, और यस, ईमानदारी से बेटा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इट्स सो इजी क्वेश्चन, वैसे तो थोड़ा सा लॉजिक चलाना है बस, बहुत इजी, और हाँ एक छोटा सा फॉर्मूला आना जरूरी है। तो सेमी सर्कल की बात करें बेटा, तो टोटल हमें लेंथ फाइंड आउट करनी, जिसको मैं कैपिटल एल ले रहा हूं, मतलब फर्स्ट लेंथ L1 ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, देन L2 L3 डॉट डॉट डॉट, टोटल कितने लेंथ होती बेटा? टोटल 13 सेमी सर्कल है बेटा। कितने हैं टोटल? 13, राइट। और एक चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बेटा, राइट, आपको पता है L मतलब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है डायग्राम में बेटा, इसको मैं L1 ले रहा हूं, फिर यहां से जो नीचे आ रहा है उसको मैं L2 ले रहा हूं, ऊपर जो है यहाँ पे L3 L4 लाइकवाइज डॉट 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 13 है टोटल, ठीक है। अब इतना जो इसका सर्कमफरेंस है बेटा सेमी सर्कल का, वो कितना होगा बेटा? राइट, सर्कल तो सेमी जो सर्कल है बेटा उसका सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, राइट। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? आधा उसका, मतलब 2 to 3 कितना हो जाएगा? सिर्फ पाई आर बेटा। तो जो पहला है उसको मैं ले रहा हूं पाई R1, सेकंड वन तो पाई R2, थर्ड वन दैट इज पाई R3 डॉट 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 पाई R कितना होगा बेटा? 13। तो पाई तो कॉमन निकल रहा है बेटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहां तक होगा बेटा? R13, मतलब टोटल 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल हमारे पास स्पाइरल में अवेलेबल है। तो आप ध्यान से देखो, जो रेडियस दी हुई है बेटा सारे सेमी सर्कल की, वो देखो ध्यान से बेटा, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लाइकवाइज। इट मींस वो किसमें दी हुई है बेटा? एपी में दी हुई है, राइट। अगर वो एपी है तो हमारे लिए तो उसका एडिशन कितना इजी हो गया, गॉट इट और नॉट बेटा, राइट। तो उसका अगर हमें एडिशन चाहिए बेटा तो कितना होगा? 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5, ये होगा एपी। और टोटल कितने हैं बेटा? 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल अवेलेबल है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 13। तो आप डायरेक्ट S13 फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, इट्स सो इजी, पाई एज इट इज। ये कौन सा होगा बेटा? S13, राइट। और इसकी बात करें बेटा इस एपी की, राइट, S13 के लिए जो फर्स्ट टर्म है कितना होगा? 0.5, कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, एंड n टोटल कितना है बेटा? 13, ठीक है। एनी डाउट बेटा?
सो पाई की वैल्यू में पुट कर रहा हूं 22/7 इन ब्रैकेट बेटा S13 मतलब 13/2 करेक्ट राइट n/2 इन ब्रैकेट 2a a की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.5 ठीक है एनी डाउट प्लस n-1 n मतलब 13 - 1 इनटू d d की वैल्यू भी कितनी है बेटा 0.5 any doubt anyone so easy beta right so 22/7 into 13/2 into ब्रैकेट में बेटा यहाँ पे 2 into 0.5 कितना होता है 1 होता है बेटा राइट सिमिलरली 13 - 1 12 into हाफ कितना होता है बेटा 6 होगा यहाँ तो किसी तो डाउट राइट सो 22/7 into 13/2 into कितना होगा बेटा 7 7 7 2 11 जा 13 into 11 मेथड याद करो बेटा कितना होगा 143 और किसमें दिया था सेंटीमीटर में तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूलना नहीं बिकॉज़ ये क्या है लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिखना भूलना नहीं है तब लास्ट में लाइन भी लिख सकते हो बेटा टोटल लेंथ of this spiral which is made up of 13 concentric semicircle is 143 centimeter. Got it? Any doubt beta? Please write down, it's so important question beta. Okay, another important question in front of you guys beta. Question number 19, again so important question. Right? Total 200 logs available है राइट बॉटम में 20 लॉग रखे हैं उससे ऊपर 19 उससे ऊपर 18 डॉट 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 मतलब हम रखते जा रहे वन लेस देन द प्रीवियस वन मतलब जो बॉटम रो बना रहे बेटा उसमें 20 उससे ऊपर 19 उससे ऊपर 18 उससे ऊपर 17 लाइकवाइज डॉट 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 राइट जब तक 200 लॉग्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हम अरेंजमेंट करते जा रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली है बेटा n राइट कि टोटल कितने रोज बनेंगे से एंड उसके बाद जो टॉप रो होगी जो लास्ट रो होगी राइट उसमें कितने लॉग अवेलेबल होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन समझ में आया बेटा किसी को डाउट तो आप ट्राई कर सकते हो राइट ट्राई द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स और हाँ वीडियो को पोस्ट करना मत भूलना ठीक है okay I'm going to start the solution of this question beta total 200 logs are given means total sum of all the logs are 200 मैं उसको SN ले रहा हूं बेटा right then bottom में 20 then 19 and 18 likewise तो वो AP में बन रहा है बेटा 20 19 18 डॉट 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 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 20 है जो कॉमन डिफरेंस है बेटा 19 - 20 मतलब -1 होगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है n मतलब टोटल कितनी रोज होगी सो इजी क्वेश्चन बेटा सिर्फ समझना था बाकी और कुछ नहीं सो इजी स्टार्ट सॉल्व कीजिए बेटा Sn हमें दिया हुआ है 200 Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 इन ब्रैकेट 2a plus n - 1 into d बेटा right the value of n we don't know the value of a yes it's a 20 plus n minus 1 into d that is -1 right beta so n/2 in bracket it's a 40 minus n plus 1 बेटा अब 2 कॉमन नहीं निकल रहा है तो इस 2 को हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा मजबूरी है राइट तो यहाँ पे आ गया 41 minus n और वो 2 चला गया उस तरफ तो वहां पे हो गया 400 बेटा so 41n minus n square is equal to कितना होगा 400 बेटा राइट दोनों को उस तरफ ले जाओ so what is that is your equation n square minus 41n plus 400 equal to 0 this is your required quadratic equation and that we have to solve इसको solve करना पड़ेगा बेटा राइट अब चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन एज वेल एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों में से कोई भी एक मेथड्स यूज कर सकते हो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं 400 के ऐसे दो पार्ट जिसका एडिशन 41 आना चाहिए राइट तो 400 की बात करें बेटा तो 4 into 100 पहले दिमाग में तो वही आता है अगेन 4 into 4 into 25 4 से भी 100 होता है बेटा
और यहाँ पे 4 4 16 25 डन, राइट, इट्स सो इजी बेटा। सो n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दिया था 25 प्लस 16n, करेक्ट बेटा। सो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व करो तो बेटा n माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस 16। व्हाट इट, मतलब दो वैल्यू मिली आपको बेटा, n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। हाउ इट्स पॉसिबल, राइट, बिकॉज जो हम रो बना रहे हैं वो दो तो पॉसिबल नहीं है, या तो 16 होगी या तो 25। इट मींस दोनों में से कोई भी एक गलत है। कौन सा? अब आप दिमाग से सोचो बेटा पहले, और उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। दोनों चीजें हम करेंगे। पहले अगर आप दिमाग से सोचो बेटा, तो अगर n की वैल्यू 25 होगी, मतलब बॉटम रो में कितनी रख रहे हैं बेटा, राइट, 20 बॉटम में, उसके बाद 19, उसके बाद 18, 17, तो मैथ्स कितना आ सकता है 1 तक, तो 27 तक, मतलब मैक्सिमम कितनी रो हो सकती है बेटा, 20 ओनली, राइट। सो डेफिनेटली 25 पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज n इक्वल टू 16 ओनली। स्टिल वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकली, राइट। अब n की वैल्यू 2 हमारे पास है, चलो मानते हैं भाई दोनों है अवेलेबल, चलो, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉप पे कितने, जो टॉप रो है, राइट, उस पे कितने लोग अवेलेबल होंगे। एपी हमारे पास है 20, 19, 18। चलो पहले मान लेता हूं मैं n इक्वल टू 25 है सपोज, राइट। तो क्या होगा बेटा, an हमें फाइंड आउट करना है टॉप वाली पे, राइट। हमारे पास फॉर्मूला बेटा दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर पहले मैं 25 की बात करूं बेटा, तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 25 माइनस 1 बेटा, राइट, 24 डायरेक्ट, एंड d की वैल्यू माइनस 1। सी ऑब्जर्व बेटा, 20 माइनस 24 मतलब माइनस 4, which is not possible, right, minus 4 लो, how it's possible, right, it means this one is not possible। मतलब करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया, that is n equal to 16। उसको भी लेकर देखते बेटा, a16 equal to a plus 15d बेटा, the value of a is 20 plus 15 minus 1, मतलब 20 minus 15 कितना होगा बेटा 5। इट मीन्स ऑफ टॉप पे बेटा, जो लास्ट रो है, बॉटम से नहीं यहां पे, राइट, लास्ट मतलब यहां पे ऊपर की बात कर रहे हैं, लास्ट मतलब बॉटम पे, वो तो 20 थी, 20, 19, 80, राइट, लाइकवाइज, मतलब जो टॉप रो है बेटा, उस पे कितने लोग होंगे बेटा 5, कितने होंगे 5। एनी डाउट बेटा, इट्स सो इजी क्वेश्चन, आई होप सो सबको समझ में आया होगा बेटा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो प्लीज इतने चीज अच्छी तरह देखना, समझना और उसको नोट डाउन करना जरूरी है। प्लीज राइट डाउन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, एंड बारी है रेस की, राइट। देखते हैं, अभी तो वीडियो में भी इसने रेस में आगे बढ़ चुके हैं, राइट। वैसे यहाँ पे बात हो रही पोटैटो रेस की, पोटैटो की रेस नहीं है बेटा, बच्चों की रेस है, राइट, बट पोटैटो तो उठाना है और बकेट में डालना है, राइट। तो बकेट आपको दिख रही होगी बेटा डायग्राम में, जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। जो सेकंड पोटैटो है वो उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, थर्ड पोटैटो उसके बाद 3 मीटर, लाइकवाइज टोटल 10 पोटैटोज है, कितने हैं बेटा 10, राइट। तो अगर बच्चा रेस शुरू कर रहा है, जो बकेट वाली पोजीशन है वहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो बेटा। जो फर्स्ट पोटैटो है मतलब उसको उठाना है एट अ टाइम और उसको वापस बकेट में डालना है। सिमिलरली नेक्स्ट पोटैटो को, जो दूसरा पोटैटो है, उसको जाकर उठाना है एट अ टाइम ओनली वन पोटैटो ही और माइट बी सी हैज टू पिक अप, राइट। सेवन पोटैटो तो लेना है और अगर उसको वापस बकेट में डालना है, देन थर्ड पोटैटो लाइकवाइज सारे पोटैटो तो ले लेना है और उसके बाद, राइट, वो रेस जीत गया? नहीं भाई, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? जो बकेट है उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो है, देन सेकंड जो पोटैटो है उससे भी 3 मीटर दूरी पे,
मतलब वैसे देखा जाए बेटा तो 5 + 3 कितना हो जाता है 8 मीटर, राइट। चलो डायग्राम में देखा तो और अच्छी तरह पता चलेगा बेटा। जो ये फर्स्ट पोटैटो है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा 5 मीटर, बट जो नेक्स्ट पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना हुआ 8 मीटर बेटा, 5 + 3। सिमिलरली आगे देखें तो 8 + 3 बेटा कितना होगा 11 मीटर का डिस्टेंस होगा। लाइकवाइज पोटैटो पिकअप करना था बेटा। अब और एक चीज ये भी है बेटा कि जब भी वो पोटैटो उठाता है पिकअप करता है उसको वापस बकेट में डालना है। मतलब जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है पोटैटो को लेने जाने का, उतना ही डिस्टेंस वो वापस भी आ रहा है, रिटर्न बैक बेटा। समझ में आई बात ही नहीं है, राइट। उसको पोटैटो उठाना है और वापस बकेट में डालना है। मतलब जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उसको उठाने में, रिटर्न बैक उतना ही आ रहा है। गॉट इट और नॉट, एनी डाउट, राइट। तो ध्यान से देखा जाए बेटा तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा बेटा 5 मीटर वो लेने के लिए जा रहा है। देन रिटर्न बैक मींस 5 2 मतलब 10 मीटर वो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर रहा है। वैसे ही सेकंड पोटैटो की बात करें बेटा तो 8 मीटर का डिस्टेंस है एंड रिटर्न बैक मतलब टोटल कितना होगा 16 मीटर बेटा, राइट। वैसे ही थर्ड पोटैटो की बात करें बेटा तो कितना होगा 11 × 2 मतलब 22 मीटर। लाइकवाइज उसको टोटल 10 पोटैटो उसको लेने हैं, पिकअप करने हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा एपी में है तो 3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटो रखे हुए हैं, राइट। मतलब ये ऑलरेडी एपी में है। या आप यहां से भी चेक करते हो फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 16, 22 लाइकवाइज तो 6 का गैप है बेटा, है ना, देख सकते हो, राइट। मतलब ये एपी में है और टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मतलब SN हमें क्या करना है फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी तरह बेटा। अब तो आप स्पीडली कर लोगे, राइट। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। SN का फॉर्मूला दैट इज n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। गॉट इट, एनी डाउट बेटा? ओके, तो SN टोटल कितने हैं बेटा n, राइट। 10 पोटैटो मतलब यहां पे आएगा बेटा 10 तो 10/2 इन ब्रैकेट 2 a मींस फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 5 प्लस, राइट 5 है बेटा नहीं ना, कितना है 10। हाँ आप वैसे लो तो पहले 5 8 इस तरीके से लो बेटा तो 5 आएगा, गॉट इट। और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो भी चलेगा, या तो पहले से ही राइट इसका और इसका रिटर्न बैक दोनों मिला के अगर इसके रिकॉर्डिंग हम ले रहे बेटा तो यहाँ पे मुझे कितना लेना होगा 10, राइट। दोनों वैसे अगर आपको याद हो इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था वो ट्रीज वाला, राइट। पहले आप 1 to 12 ले लो और उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 सेक्शन थे, राइट बेटा। या फिर पहले आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर करो, दोनों वे से आप आंसर ला सकते हो। सेम पॉसिबिलिटी इज हियर बेटा, राइट। प्लस अगर मैं 10 ले रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो डिफरेंस भी मुझे कितना लेना पड़ेगा बेटा 6। अगर मैं 5 के हिसाब से लेगा कितना लेना पड़ता 3 बेटा, राइट। सो n मतलब यहाँ पे 10 - 1 * d कितना आएगा 6। एनी डाउट बेटा? ओके, राइट। सो हियर इट इज बेटा 5 इन ब्रैकेट इट्स 20 प्लस 10 - 1 बेटा 9 9 6 54, राइट। So 5 × 74. Got it? Any doubt बेटा? So correct answer is हाँ आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, अगर मैंने थॉट नहीं किया होता 10 as it is रखता, राइट, जो हमने मेथड के हिसाब से कर रहे थे तो आप 10 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 74 के साथ करते या 2 इसके साथ करते बेटा, राइट। तो 13 7 जा 10 जा तो भी आपका डायरेक्ट आंसर 370 आता। और यहाँ से भी आप 5 4 जा 0 ऊपर 2 7 5 जा 35 + 2 37 तो भी वही आंसर बेटा, ठीक है। मतलब उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है बेटा ये पूरी रेस कंप्लीट करने में 370 मीटर। एनी डाउट बेटा? एनीवन श्योर? ओके, तो नाउ इट्स टाइम। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे तब सरप्राइज बोला था वो आएगा, राइट। तो इसलिए लास्ट में रखा है, एक सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए बेटा। और हाँ जो भी इसका आंसर दे पाएगा
राइट, मेरी तरफ से उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। क्या होगा, वो तो सरप्राइज ही है, तो बाद में पता चलेगा बेटा। तो सरप्राइज क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला। राइट, कंपल्सरी यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा बेटा और वो सही होगा, वही राइट इस गिफ्ट का विजेता होगा। समझ में आया? राइट, तो क्वेश्चन क्या है जरा ये सुन लो, बहुत ही ध्यान से सुनना। राइट, स्टार्टिंग है बेटा स्कूल की। राइट, और आपके क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 40 स्टूडेंट्स है। राइट, और क्लास में क्लास टीचर की एंट्री होती है और वो बता रहे बेटा कि चलो सारे बच्चों एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लो। मतलब सारे एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। टोटल 40 स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल है और सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। सो टेल मी द करेक्ट आंसर कि टोटल कितने हैंडशेक होंगे? राइट, गॉट द क्वेश्चन? टोटल कितने हैंडशेक होंगे, ये आपको आंसर बताना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर डालो बेटा।